Good morning, students. Today's class is about Foundation Course Paper 3, which is Fundamentals of Law and Ethics. आपको पता होगा आपके CMA फाउंडेशन में 4 पेपर होता है. From these 4 papers having 100 mark each, 4 papers is total 400 mark. Out of which I will take your paper 3 responsibility. The paper 3 is the fundamentals of laws एंड एथिक्स. ओके, तो हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ लॉस एथिक्स क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किसमें से कितना मार्क आता है. फिर हम लोग पहले इसको कंप्लीट करवाते हैं, फिर हम लोग कोर्स शुरुआत कराएंगे. द फर्स्ट वन इज पेपर 3, व्हिच वन इज फंडामेंटल्स ऑफ लॉस and ethics. The paper is fundamentals of laws and ethics. It is comprises of two things. First one is fundamentals of laws, that is fundamentals of commercial laws. Is that okay? And next one is fundamentals of ethics. First, section A. First is fundamentals of commercial laws. Section B is our fundamentals of ethics. This one is section A, fundamentals of commercial laws. Section B is fundamentals of ethics. From fundamentals of ethics, it will having 30% of your marks, and our fundamentals of commercial law is having 70% weightage of our total mark. Is that okay? Our section A, fundamentals of commercial law, is having 70% mark of weightage, and my fundamentals of ethics is having 30% of weightage of total mark. Is that okay? One is fundamentals of commercial law. In case of fundamentals of commercial law, we have to read 3 chapters. Or fundamentals of commercial law comprises of 3 chapters. Our first part is Indian Contract Act 1872. Second one is Sales of Goods Act 1930. Next one is Negotiable Instrument Act 1882. Is that clear? In case of fundamental of commercial law, we have to read 3 chapters. One is Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act 1930, Negotiable Instrument Act 1881. आप लोग बोलोगे सर यहाँ आप लिख लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमको भाई इधर ही लिखना चाहिए था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इधर लिखना चाहिए था इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. नहीं है, जिस एक्ट और जिस लॉ का नाम जैसा है हमको वैसा ही लिखना पड़ेगा. इसके आगे क्यों इंडियन लगा, इसके आगे क्यों नहीं लगा, हम लोग 15-20 मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे. एकदम वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे. इसके आगे इंडियन क्यों आया, इसके आगे इंडियन क्यों नहीं आया, ये सब चीज एकदम हम लोग क्लियर में पढ़ेंगे. Is that okay? And my next part B or section B is having fundamentals of ethics 30%. The chapter is business and ethics. Okay, what is business and what is the ethics for business? Ethics means simple, you have to know that ethics is a thing
that gives us what we have to do और what we do not have to do. हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज हमको किधर पता चलेगा? बिजनेस एथिक्स में पता चलेगा. That means a business person have to do what, मतलब एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बिजनेस एंड एथिक्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, these fundamentals of commercial laws will contain 70 marks from Indian Contract Act 1872, Sales of Goods Act 1930, Negotiable Instrument Act 1881. From these three chapters, or the 70% weightage will having again divided into three parts. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हमारा 40% का मार्क आएगा. आप बोलोगे सर 40% आप क्यों बोल रहे हो, 40 मार्क क्यों नहीं बोलते हो? भाई टोटल 100 मार्क से पेपर में हमारा 100 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता है, 120 मार्क का क्वेश्चन होता है इसमें, इस पेपर में. कैसे होता है हम लोग 5 मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे. इसलिए मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, 40% ऑफ वेटेज. Is that okay? Next one is from Sales of Goods Act 1930. It one is 20% of weightage. Is that okay? And next of Negotiable Instrument Act 1881. Here it is 10% of weightage. From Business Ethics, there is an or Fundamentals of Ethics, section B. There is a chapter Business Ethics. Simple, it is contain 30% of total mark. Is that clear? फिर यहां से एक चीज और करना पड़ेगा कि जो 40 मार्क का 40% का वेटेज आएगा और ये जो 70% का वेटेज आ रहा है वो कैसा आएगा, कितना मार्क आएगा, क्या आएगा, सब चीज हम लोग एकदम अच्छे से, क्योंकि दिस वन इज माय फर्स्ट क्लास फॉर यू स्टूडेंट्स और for you peoples. So you have to clarify all these regarding about paper so that it will create an curiousness for studying about this paper. क्यूरियोसिटी आएगा, हमको ऐसा ऐसा पढ़ना है. कि आप लोग पढ़ोगे कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, एकदम थ्योरी पढ़ के चले जाओगे, कुछ फायदा नहीं है. थोड़ा सा कैश लो, पढ़ो, आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो. समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, सबको अच्छे से दिखवाना पड़ेगा. तो पहले देखो मेरा जो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट वन इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, having 1 mark each, 25 mark. 25 question having 1 mark is total is 25. Okay, next one is from column A and B. कितना आएगा, 5 into 1 equals to 5. एक क्वेश्चन आएगा, लेफ्ट साइड में 5 चीज दिया होगा, राइट साइड में 5 चीज दिया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा. सो इट इज हैविंग 5 मार्क्स ऑफ इज हैविंग 5 मार्क्स. नेक्स्ट वन इज मेरा क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स. 12 क्वेश्चंस इनटू 1 इक्वल्स टू 12. कितना आएगा, एक क्वेश्चन 12 मार्क का आएगा, 12 मार्क एक 12 सॉरी टोटल 12 क्वेश्चन आएगा. हर एक का क्वेश्चन का मार्क कितना होता है, 1 मार्क होता है. टोटल कितना हो गया, 12 मार्क. समझ में आ रहा है? एंड लास्ट मोस्ट इज लॉन्ग क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चन इज देयर, 7, दिस वन इज 28. यहां क्या आएगा, 6 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा. 6 से तुमको कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? द क्वेश्चन पेपर इज हैविंग 6 लॉन्ग क्वेश्चंस of 7 marks, but you have to write only 4 out of the 6. समझ में आ रहा है? Is that clear? So ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 70. देखो ये टोटल मार्क कितना हो गया, यहाँ 6 into 7 और एक्स्ट्रा जो 2 क्वेश्चन रहा 2 into 7, यहाँ 14 मार्क एक्स्ट्रा है. मतलब ये पार्ट से मेरा कितना क्वेश्चन बा, कितना मार्क का पेपर आएगा, ये टोटल मार्क से 70 plus 14 कितना आएगा, 84%. मतलब 84 मार्क का क्वेश्चन आएगा. आपको उसमें से कितना लिखना पड़ेगा, 70 मार्क का आंसर लिखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पार्ट इज आवर फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स. समझ में आ रहा है? यहां भी हमारा क्या आएगा, पहला बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू. कितना आएगा, 12 आएगा. 12 एमसीक्यूज इनटू 1 इक्वल्स टू 12. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज आवर ट्रू एंड फॉल्स. कितना आएगा ट्रू एंड फॉल्स, 6 आएगा. कितना आता है, 6 into 1
इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट वन मेरा क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आएगा, एक एक मार्क कितना होगा 6 होगा, टोटल कितना आएगा, यहां भी मेरा देखो 3 ऑप्शन होगा, 3 से 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। सो 3 इंटू 6 बट 2 इंटू 6 12 हो गया, टोटल ये कितना हो गया 12 12 14 6 30, इधर 1 मार्क का एक्स्ट्रा रह गया, मतलब 36 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पर आपको कितना लिखना पड़ेगा 30 मार्क का आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो फ्रॉम पार्ट 1 फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉस हैविंग टोटल 84 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट आपको कितना लिखना पड़ेगा 70 मार्क का लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? But in case of section B, fundamentals of ethics, that is 30%, total having 36 mark, but आपको कितना लिखना पड़ेगा 30 मार्क लिखना पड़ेगा। First, I have clear picture view of your examination point of view. आपका क्वेश्चन पेपर में इतना कंटेंट होगा। Is that clear? अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैंने जब बोला था भाई ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों है, इसके आगे इंडियन क्यों नहीं लिखा है, इंडियन क्यों लिखा है, ये दोनों का आगे इंडियन क्यों नहीं लिखा है। फिर और एक बात आएगा, इसको हम फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ क्यों बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल मतलब क्या होता है रे, जैसे द पर्सन इज हैविंग बर्थ इन इंडिया, हैविंग सम फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब उसको उसका ड्यूटी एंड राइट्स पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल मतलब ऐसा चीज, मतलब नॉर्मल सबको पता होना ही होना चाहिए, मतलब जैसे मेरा राइट एंड ड्यूटी मुझे पता है एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइक इन केस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ, those people involved in transactions of commercial things will have to know these three laws equally। जो पर्सन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड है, सबको क्या करना पड़ेगा, ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर सीएमए फाउंडेशन में उसको तो ही पढ़ना पड़ेगा। भाई तू सीएमए फाउंडेशन का बंदा हो या तू पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इफ यू पीपल इज हैविंग एन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, तुम लोग जब भी एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो, तुमको ये 3 चीज के बारे में पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? सो तुम फिर पूछोगे सर कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब एनी बिजनेस, ट्रेड, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज, बार्टर, जो भी चीज है, if a person is having involved in any one of these following, that is whether it is a businessman, whether it is a small trader or normal trader, whether it is a purchaser, whether it is a seller, whether he is doing exchange, whether it is doing barter, if any one of these thing will be occur etc, ऐसे बहुत सारे चीज है। जो भी चीज हमारा ये ट्रांजैक्शन करता है, बस जो भी बंदा, बस जो भी कंपनी ये सब ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, उसको ये 3 लॉ पढ़ना जरूरी है। ये क्लियर हो गया? फिर आप लोग बोलोगे भाई परचेज तो हम लोग हमेशा करते हैं, मैं भी करता हूं, मेरा छोटा भाई भी करता है, मेरा पापा भी करते हैं, मेरा मम्मी भी करते हैं, सब कुछ, मतलब एवरीवन इन इंडिया हैविंग डूइंग ऑफ परचेजेस, सब आदमी सब लोग परचेज करते हैं, सबको पढ़ने के लिए जरूरत है। हाँ, सबको पढ़ने के लिए ये चीज जरूरत है, सबको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है मैं इसका फंडामेंटल क्यों, फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ में ये बोल रहा है, क्योंकि ये जो ऐसा चैप्टर है हमको सबको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम बोलोगे क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ, एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ ए पर्सन इज डूइंग, whether he is a businessman, whether he is a trader, whether he is a purchaser, whether he is a seller, whether he is in barter, whether it is he is doing in barter, whether he is doing any exchange, each and every people have to do or know about 3 fundamental commercial laws। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन इज एथिक्स। पहले और थोड़ा डिस्कशन करते हैं इधर, फिर हम लोग एथिक्स में आएंगे। देखो मैंने जो बताया फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ, मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या है रे, ऐसा एक चीज होता है, फंडामेंटल मतलब ऐसा एक चीज होता है हमको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब
ऐसा ड्यूटी ऐसा राइट से मेरे पास भी वो चीज है, समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी जी के पास भी वही चीज है, रतन टाटा जी के पास वही चीज है। मतलब फंडामेंटल सबके लिए सेम होता है, सबको पता होना ही चाहिए। इज दैट ओके? तुम बोलोगे सर फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्शियल लॉ में कंपनी एक्ट नहीं आएगा, कंपनी एक्ट 2008 नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए वो जरूरत नहीं है। जो कंपनी बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको पढ़ना चाहिए कंपनी एक्ट, हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जो बंदा पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है उसको पार्टनरशिप पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो बंदा और मतलब जो जॉइंट बिजनेस जॉइंट फैमिली HUF कर रहे उसको HUF पढ़ना चाहिए। बट दिस टाइप ऑफ थ्री लॉ हैव टू रीड अबाउट और हैव टू नो अबाउट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, सबको पता होना चाहिए, because it is in commercial law and every people, each and every people having related of business transactions or commercial transactions in their life। भाई कुछ भी करो, 5 रुपए का मैगी तो हम लोग परचेज करते हैं। सो यू फॉर डूइंग एनी परचेज यू विल कमिंग अंडर एनी कमर्शियल, सो यू हैव टू नो अबाउट दीज थिंग्स और 3 पार्ट्स फंडामेंटल्स ऑफ कमर्शियल लॉ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज कमर्शियल लॉ? हम एक सिंगल क्लास एकदम 1 आवर का लेंगे, लॉ का मतलब क्या होता है। इज दैट ओके? मैंने बता दिया फंडामेंटल का मतलब क्या है, कमर्शियल का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है। एक 1 आवर हम लोग इसमें ही डिस्कशन करेंगे। लॉ का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताता हूं। लॉ मीन्स एनी एक्ट, एनी रूल्स, एनी ऑर्डिनेंस, एनी bylaws, any regulations and any order। इसके 6 एक्ट क्या होता है? लॉ मीन्स एनी एक्ट passed in parliament, any rules given by central government and state government, any ordinance given by governor of state and president of nation। समझ में आ रहा है? any bylaws given by for internal management by an statutory organization, any regulations for outsiders by an statutory organization and any order given by any authority। समझ में आ रहा है? ये सब चीज क्या है, एकदम हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड एक क्लास में पूरा 1 घंटा ले गए ये सब समझने को। क्या होता है लॉ, क्यों होता है लॉ, ये एक्ट हम किसको बोलेंगे, रूल किसको बोलेंगे, ऑर्डिनेंस किसको बोलेंगे, एक्ट का वैलिडिटी कितना होता है, रूल्स का वैलिडिटी कितना होता है, ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना होता है। रूल हम एक एक्ट के लिए पढ़े हैं, दूसरा एक्ट में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो हम जब पढ़ रहे हैं ना, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स पेपर पढ़ रहे हैं। तुम बोलोगे सर ये 3 चैप्टर पढ़ा तो बात खत्म, क्यों फिर लॉ को क्या पढ़ना है, फंडामेंटल को क्या पढ़ना है। देखो पहले जो तुम फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स पढ़ रहे हो, 2 वर्ड पे एकदम फोकस है। फर्स्ट वन इज लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। सेकंड वन इज एथिक्स। पहले लॉ क्या पता होना चाहिए, फिर एथिक्स क्या पता होना चाहिए, फिर हम लोग आएंगे फंडामेंटल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, फंडामेंटल लॉ में कितने सारे आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स में क्या क्या चीज आएगा। इज दैट ओके? थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल लेता हूं, कैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम ये 3 चीज यूज करते हैं। फिर हम लोग किधर जाएंगे, फिर फंडामेंटल्स ऑफ लॉ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके देखो, फर्स्ट थिंग इज in case of fundamental of commercial laws there is 3 chapter, one is Indian Contract Act, second one is Sales of Goods Act, second one is Negotiable Instrument Act। मैं जैसे बोल रहा हूं कि भाई देख, मैं ये सब 3 लॉ को डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करता हूं, एक एक एग्जांपल देता हूं सब चीज से, तो आपको पता चल जाएगा भाई सीएमए फाउंडेशन लोग को यही पढ़ना नहीं है। सब आदमी, सबको, एवरी पीपल, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नो अबाउट these 3 laws because everyone is involving any purchase। हम सबको क्या करना पड़ेगा, परचेज और सेल्स करवाना पड़ता है, इसीलिए हमको ये सब चीज पता होना चाहिए। क्लियर? अभी देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। देख लो, मैं क्या किया, एक एग्रीमेंट करवाया, किसके साथ, बी के साथ। मैंने बोला भाई मैं तुझे 500 दे रहा हूं,
तू मुझे क्या कर, तेरा मोबाइल दे दे। अच्छे से देखो इधर, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं तुझे 500 दे रहा हूं, तू मुझे तेरा मोबाइल दे दे। ये बोला एक काम कर, तू मुझे 500 दे दे अभी, या मैं पेपर प्रेजेंटेशन বা पेपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं तुझे 500 देता हूं, तू मुझे मोबाइल दे दे। बोल दिया मैंने। जब ये क्या बोला, हाँ बोल दिया, बी ने हाँ बोला, इट्स ओके, तू कल ला, मैं तुझे मोबाइल देता हूँ। समझ में आ रहा है? पर मैंने नेक्स्ट डे जब गया, बी को इसने सी को सेल करवा दिया। मोबाइल किसका है, बी का है। किसको देने वाला था, ए को देने वाला था, पर इसने किसको सेल करवा दिया, सी को सेल करवा दिया। सो इन दिस केस, वेदर ए इज हैविंग एनी राइट्स और एनी ड्यूटीज, तब भी ए को क्या करना चाहिए, बी को स्यू करना चाहिए, या बी को मानना चाहिए, या बी के फादर को कंप्लेन करवाना चाहिए, या बी के अंडर एक स्यू लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए ए को क्या करना चाहिए, बी के एग्नेस्ट करना चाहिए, या वो जो मोबाइल ले लिया मोबाइल के एग्नेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। नहीं तो भाई ऐसे मतलब बहुत चीज हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन ऑल दिस लॉस। हमको जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता चल जाएगा, पढ़ेंगे, तभी मुझे पता चलेगा भाई ये ट्रांजेक्शन्स में हम लोग को क्या करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इट्स ओके। द नेक्स्ट मेन डाउट इज, तुम बोलोगे सर ये तीन लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे ही इंडियन लगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन पूरा अमेरिका भी एप्लीकेबल है? नहीं, अमेरिका भी एप्लीकेबल नहीं। तो तुम बोलोगे सर इसके आगे तो इंडियन लगना ही चाहिए था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम बोलोगे सर इन केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली इंडियन इज मेंशन, here sales of goods act, Indian sales of goods act is not mentioned. In case of negotiable instrument act, this one is not mentioned. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, जब ये सब ट्रांजेक्शन्स हुआ था ना, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुआ, ये मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉरेन लॉ के कंप्लीटली, मतलब एक जो फॉरेन लॉ होता था बिफोर इंडिपेंडेंस, तब मेरा ये एक्ट आया था। मतलब फॉरेन लॉ के बेस में ये चीज हुआ है, बेस्ड ऑन फॉरेन लॉस। ये जो पूरा चीज मेरा किसके हिसाब से है, ये जब पूरा चीज हमारा फंडामेंटल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल और फॉरेन लॉस, फॉरेन लॉ के हिसाब से बना हुआ है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? फटाफट इसको नोट करवाओ, फिर 1 मिनट में हम लोग ये तीनों चीज के मतलब डिस्कशन करते हैं। ओके ओके देखो, ये क्या बेस्ड था, फॉरेन लॉ और बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉस। दैट्स से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको आगे पहले इंडियन का वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। आप लोग इंडिपेंडेंस के बात मत ले लो, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी लिखना पड़ेगा। फिर नहीं, ये जो बेस था उसका प्रिपरेशन था फुल्ली बेस्ड ऑन फॉरेन लॉस और इंग्लिश लॉस, फॉरेन से आया था, ब्रिटेन से आया था। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोल रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकंड थिंग इज, इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देखो कैसे हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। मैंने एक मेडिसिन परचेज करवाया एक शॉप से जाके, उसने क्या किया, मैंने देखा नहीं था कि उसने भी देखा नहीं था। ए शॉप, एक पर्सन है, राम ले लो, राम एक मेडिसिन परचेज करवाया। तब भी देखो क्या हुआ, जब मैंने एक मेडिसिन परचेज करवाया, तभी मैंने देखा कि भाई शॉपकीपर ने मुझे एक्सपायरी मेडिसिन दे दिया। तभी what is the rights of this person or Ram, what is the duties of Ram will having regarding the shop A or the person who is selling that product, and what is the medicines, वो मेडिसिन को क्या करेगा, फिर शॉप के एग्नेस्ट में क्या करेगा, वो मेडिसिन लाके रिटर्न करेगा कि क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब चीज हमको किधर मिलेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में मिलेगा। Is that clear? Next one is negotiable instrument act. Here three terms is there. The first one is promissory note. Second one is bills of
एक्सचेंज, थर्ड वन इज चेक। इधर हमको तीन चीज पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक इन डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ऑन द हेल्प ऑफ चेक। सो हमको इधर पढ़ना पड़ेगा प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक में क्या क्या फॉर्म है, किधर किधर हमको साइन करना पड़ेगा, किधर अमाउंट लिखना पड़ेगा, किधर हमको बॉक्स में अमाउंट इन वर्ड लिखना पड़ेगा। फिर देख लो मैंने 50,000 ओनली फिगर में लिखा, वर्ड में लिखा, फिगर में 5 लाख डाल दिया, एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया, तभी क्या हो सकता है, वो चेक क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये सब चीज हम लोग किधर देखेंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक विल बी होली डिपेंडेंट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर हो गया, हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एथिक्स। एथिक्स में एक ही चीज आपको देखो क्या होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज हमको किधर पढ़ना पड़ेगा, एथिक्स में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द एथिक्स एंड व्हाट इज द ह्यूमैनिटी ऑफ एन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं रे, एक ह्यूमैनिटी होता है, वैसे ही हमको इधर क्या पढ़ने पड़ेगा, एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सोच लो उसको मिक्स ऑफ नहीं करना चाहिए, गुड्स, सस्ता वाला गुड्स, अच्छा वाला गुड्स, दोनों को मिक्स करके अच्छा वाला के प्राइस में बेच दे, ये हो गया, ये सब चीज हमको नहीं करना चाहिए। व्हाट टू डू, कस्टमर के हिसाब से मुझे चीज भेजना पड़ेगा, कस्टमर को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग किधर पढ़ेंगे, एथिक्स में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। समझ में आ रहा है, वो जो एथिक्स का क्या वैल्यू है बिजनेस में, ये सब चीज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, अभी देख लो ये जो एमसीक्यू 25 है, कॉलम ए टू बी 5 मार्क का है, ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क का है, ये जो हमारा 30 एमसीक्यू अगेन 12 है, एमसीक्यू 18 है, तो आपको ये सब चीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। इफ यू आर कंसंट्रेट ऑन योर क्लास, आप लोग में क्या पढ़ा रहा हूं थोड़ा अच्छे से देख लो क्लास में, तो ये जो चीज है इधर कितना हो गया, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 42, दिस वन इज 12 प्लस 6 18, 0 60। ये जो 60 मार्क का पार्ट है ना, आपको एकदम पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको एकदम क्या करना पड़ेगा, मैं क्लास में जो चीज पढ़ा रहा हूं कंसंट्रेटली सुनते जाओ, ये एकदम खत्म हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, हमको कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 into 7 है, 4 क्वेश्चन आएगा, ईच हैविंग 7, हियर 2 क्वेश्चंस विल देयर हैविंग 6 मार्क इज 12, हमको वो 28 and 12 ये 40 मार्क्स ही पढ़ना पड़ेगा। हम लोग कैसे लिखेंगे, ये प्रेजेंटेशन कैसे करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे, ये सब चीज हम लोग को कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, पहले लॉ लिखो, क्या बोला कंपनी, सोच लो एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले एक्ट क्या बोल रहा है लिखो, फिर मैं उसको क्या इंटरप्रेट कर रहा हूं उसको लिखो, फिर मेरा कैश लॉ लिखो, फिर उसका कंक्लूजन पार्ट लिखो। क्या क्या होता है जनरली, हर चीज एकदम सब चीज डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो 60 मार्क यहाँ था टोटल 30 42, यहाँ 18, आप अच्छे से क्लास में कंसंट्रेट करके देखिए, ये सब चीज आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। जितना जितना हम लोग क्लास बढ़ते जाएंगे, कोर्स खत्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आपका हो जाएगा। मुझे कहाँ फोकस करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, हम लोग कैसे लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब चीज एकदम अच्छे से क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है, सो दिस वर्ड इज द complete theory about our law paper 3, whose name is fundamentals of commercial laws. Some fundamental of commercial laws, fundamentals of laws and ethics, ये पेपर का नाम है, ये दो पार्ट है। ओके, तो आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉ, ए वर्ड लॉ को 1 घंटा पढ़ेंगे कि भाई लॉ क्या होता है, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिजनेस एथिक्स। समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑन नोट क्या करते हैं, लॉ को डिफाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास ये शुरू करते हैं। ओके, इसको अच्छे से फर्स्ट पेज में लिख के रखो, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, क्या पढ़ रहे हैं ये भी समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।